Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start chapter 1 maps, grid lines. First of all, I will read the keywords. Horizontal. Horizontal means parallel to plane of the horizon. Horizon is an imaginary line at which the earth's surface and the sky appear to meet. Vertical. At right angle to a horizontal plane. Hemisphere. Hemisphere means a half of the earth, usually as divided into northern and southern halves by the equator. Tilted. Bent. Cartographer. A person who draws maps. So dear students, first of all, I will tell you about what is map and what is globe. पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैप क्या है और ग्लोब क्या है. Map is a representation of an area of land or sea showing physical features of countries, cities, etc. And globe is a spherical model of the earth, as you can see in this picture. Why we use globe? Because it is the best way to see about shapes of the land and the oceans, and also it shows the all continents and oceans of the world. So this is called, so we use globe. So dear students, this is the globe. This is the globe. The earth is almost a sphere that rotates around its axis. ये इसकी एक्सिस है. इसको हम रोटेट करते हैं तो ये दिन और रात होते हैं. इसको हम रोटेशन कहते हैं. Two poles in the globe. This is called North Pole and this is called South Pole. There are different kinds of lines in this globe. So let's describe the lines of latitude. What is latitude? Lines which across a map from east to west, these lines are called latitude. Lines of latitude are called parallel lines. These are imaginary lines. They are of different lengths. For example, equator is the longest line, whereas the latitude at north and south pole is the shortest line. The line in the middle of the globe, it is called equator. Equator is an imaginary line. It divides the globe into northern hemisphere and southern hemisphere. So there are 5 major latitude lines are: number 1, the Arctic Circle; number 2, the Antarctic Circle; number 3, the Equator; number 4, the Tropic of Cancer; number 5, the Tropic of Capricorn. Let's describe the Arctic Circle. जो आर्कटिक सर्किल होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ होता है. 66.5 डिग्री पे ये आर्कटिक सर्किल होता है. And the second is the Antarctic Circle. The Antarctic Circle is located at approximately 66.5 degrees with south latitude. वो the Antarctic Circle जो होता है वो साउथ पोल की तरफ होता है. जैसे बीच में इक्वेटर लाइन होती है तो ऊपर हम जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ तो वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहेंगे हम उसको, और जब इक्वेटर से नीचे जाएंगे तो उसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहेंगे. जो लाइंस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगी 66.5 की डिग्री पे तो वहाँ पे हम कहेंगे दैट इज द आर्कटिक सर्किल. और जब हम इक्वेटर से नीचे जाएंगे इट मीन्स कि साउथर्न की तरफ, साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ, साउथ पोल की तरफ, तो वहाँ पे एंटार्कटिक सर्किल होगा.
66.5 डिग्री पे, इक्वेटर के 66.5 डिग्री पे द एंटार्कटिक सर्किल होगा। एंड जो बीच वाली लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन और वो वहाँ पे 0 डिग्री होता है। और यही लाइन ग्लोब को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, एक ऊपर वाला द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज साउथर्न हेमिस्फीयर। और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम कैसे, जब हम इक्वेटर से एक डिग्री 2 डिग्री 66 डिग्री से 66.5 डिग्री तक जाएंगे तो वहाँ पे हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। और जब हम इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ जाएंगे 66.5 डिग्री पे तो वहाँ पे हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री तक जाएंगे तो वहाँ पे हमें द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। और जब हम इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री तक तो वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन्स होंगी। On the Tropic of the Cancer, the sun is hanging directly upward to noon, and on the Tropic of the Capricorn, the sun is hanging directly upward at noon. So dear students, it is all about the lines of latitude. Dear students, अभी आपको फिर से बताती हूँ. This is a globe. This point is called North Pole and this point is called South Pole. जो लाइन्स ईस्ट से वेस्ट तक जाएं तो उनको हम लेटीट्यूड कहते हैं। उन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। और जो लाइन्स नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक आएँ तो उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। द लाइन इन द मिडल ऑफ द ग्लोब इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर एंड देयर इज़ 0 डिग्री। जब हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ 23 की डिग्री पर पहुंचेंगे तो देयर इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब हम 66.5 की डिग्री तक पहुंचेंगे तो देयर इज़ आर्कटिक सर्किल। जब हम नॉर्थ पोल के अपोजिट साइड में जाएंगे देयर इज़ द साउथ पोल। जब हम इक्वेटर से 23 डिग्री तक जाएंगे 23.5 डिग्री तक जाएंगे तो देयर इज़ अ ट्रॉपिक ऑफ लाइन्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। And at the degree of 66.5 there is Antarctic circle. जब हम इक्वेटर से 1 डिग्री तक पहुंचेंगे 1 डिग्री तक जाएंगे तो उन लाइंस के बीच में इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो जो लाइंस होंगी उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर। इक्वेटर से जाएंगे ऊपर तो उन लाइंस के बीच में 111 किलोमीटर उनका डिस्टेंस होता है। फिर जब 2 डिग्री पे जाएंगे तो फिर 111 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। फिर हम इसी तरीके से हम नीचे जाएंगे साउथ पोल की तरफ तो उन इक्वेटर से नीचे वाली लाइन में दूसरी लाइन में जो डिस्टेंस होगा वो 111 किलोमीटर होगा। टोटल लाइंस होती हैं नॉर्थ पोल की तरफ 89 और जब हम नीचे जाएंगे तो 89 लाइंस होंगी साउथ पोल की तरफ और बीच वाली 1 लाइन। तो टोटल लाइंस हो गई 179।